then the backlog starts piling up, and after some time they leave the subject and they think that when next subject will start, I'll be dedicated and I'll attend the classes live and I'll do this and I'll do that, and then the next subject comes and then the same thing happens again, because it's a cycle, it's a mentality. कहते हैं ना, आदमी अपनी आदत बदल सकता है, फितरत नहीं. That's why whenever I start a subject, I always say that you know, you you might not be dedicated all the means you might not be, motivated all the time, but you can be dedicated all of the time. So dedication is more important, because when I was also a student, I do remember, I fell sick in between. I had a fever, and that fever ran for quite a long time actually, and nobody was able to detect what's the problem. Even my own father is a doctor; he was also baffled that what is happening. And then I went to Medanta, Gurgaon, and then I got checked over there. They did every test that they can. Still, nobody was able to find the reason. And but still, I never missed a single class. I attended all my classes, whether I was shivering in the class, whether the fever was high. I was attending the classes regularly. I didn't miss even a single class. But that paid off at the end, isn't it? I got selected, and see, here I am now. So that's why dedication is important. You have to be dedicated if you want to achieve something in your life. So be dedicated and be regular in your classes. Do not miss your class. Do not miss your class. Trust me, it will help towards the end. It always helps. तो क्लासेस करनी है, मिस नहीं करनी है. अक्षरा, गुड आफ्टरनून बेटा. आदिल, गुड आफ्टरनून. आर्को, गुड आफ्टरनून. हर्ष, गुड आफ्टरनून. प्रोक्रेस्टिनेशन, एब्सोल्युटली. सर, इतना डिस्ट्रैक्शन में फोकस कैसे करते थे क्लास में? हर्ष बेटा, यही तो डेडिकेशन है ना. If you're gonna miss something, then if somehow a question comes in the examination from that particular topic and you won't be able to solve it, other students will be solving it definitely, because they were attentive in the class at that time. And obviously whole 1 year will be a waste, because you will have to prepare again from the starting, and you will have to prepare again for the next year. So that's why I always say that give your 100% this time. देखो, अभी ना मैं कुछ बातें बोलता हूँ, तुम लोगों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ. तुम एक चीज देखो, आज मैं जहाँ हूँ, ठीक है, मीन्स आई एम सेटिस्फाइड विद वट एवर आई हैव डन, द काइंड ऑफ द प्रोफेशन आई एम इन. आई फील ब्लेस्ड all the time that I chose this profession and I left my job. Although sometimes I do have that kind of feeling that I shouldn't have left my job when I see my friends, those who are holding really good positions in the government and doing really good, in the job. Sometimes I feel like I shouldn't have left my job. But when I think about what I'm doing and the kind of the satisfaction that I have at the end of the day, I feel like that was the right decision, isn't it? तो मुझे आज ये लगता है कि अगर मैंने तब मेहनत नहीं करी होती, तो जो मैं आज हूँ, मैं अपने आप को कोस रहा होता उस समय. अभी भी कुछ चीजें हैं, आई थिंक मुझे लगता है कि यार तब मैंने ऐसा कर लिया होता तो इट वुड हैव बीन बेटर. और मैं आज भी सोचता हूँ मैंने तब क्यों नहीं किया. लेकिन अब मैं पास्ट में जाकर उसको चेंज नहीं कर सकता, और अब चेंज करने की एज निकल चुकी है चीजों की. द सेम थिंग इज विद यू पीपल ऑल्सो. अगर आपने अभी मेहनत नहीं करी ना, आपके आने वाला जो आप हो, वो पूरी जिंदगी अपने आप को कोसोगे कि तब मैंने मेहनत कर ली होती तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती. और ये जो फीलिंग होती है ना आदमी के मन में कि यार अगर तब मैंने ये कर लिया होता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती है, पूरी जिंदगी इंसान को खाती रहती है. एक लाइफ में एक कंटेंटमेंट बहुत जरूरी है. पैसा आज है, कल नहीं है, कुछ नहीं. मतलब पैसा इज नॉट, मैं बता रहा हूँ, टाइम के साथ तुम्हें समझ में आएगा, मनी इज नॉट एवरीथिंग. थोड़े टाइम के बाद तुम्हें लगता है यार ठीक है, मेरे पास इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ टू लिव हैप्पीली. So that's why work really hard right now, so that your future self doesn't curse you at that time. तो जितना हो मेहनत करो बेटा, और डेडिकेटेड रहो ये सोच के कि तुम्हें अपने आगे आने वाले 60 साल सवारने हैं, और यही तुम्हारे साल हैं. ये जो कुछ ईयर्स है ना, अभी 4, 5, 6 ईयर्स, इसी में तुम अपनी आगे आने वाली जिंदगी डिसाइड करोगे. तुम्हारे अभी के डिसीजन वो डिसाइड करेंगे. So that's why be dedicated, be hardworking all the time. Whenever distraction comes, try to make yourself understand that these distractions, whatever is distracting you, I can do all those things later on also, and I have a whole life left for all these things. तो वो जरूरी है. देखो ना, मैं दिल्ली आया हूँ आज. yesterday I told you for what reason I am over here. तुम्हें पता ही है, वेले रीजन है यार. लेकिन क्या, I want to enjoy my life, and now I am enjoying my life because I am in a position to enjoy my life. I have already done the hard work when I was supposed to do. I did that part. That's why I am enjoying right now. अगर मैंने तब नहीं किया होता तो आज मैं ये नहीं कर रहा होता. मेहनत करो, है ना, दिन रात मेहनत करो. मैं सही बता रहा हूँ, इट विल पे टुवर्ड्स दैट. दिन रात पढ़ो. गुड आफ्टरनून बेटा. देखो यार, हम लोगों के लिए ना, दोज हु वी बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास में ना
हम लोगों के पास एक ही तरीका है ऊपर आने का, मेहनत और पढ़ाई। अगर तुम पढ़ लोगे, मेहनत कर लोगे, ऊपर आ जाओगे। मुझे कई बार लोग मिलते हैं, है ना, समटाइम्स व्हेन पीपल कम टू माय प्लेस फॉर सम वर्क और व्हेन आई गो आउटसाइड, इवन माय ड्राइवर यूज्ड टू से दिस थिंग कि सर आप लोगों का अच्छा, आप लोगों ने पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ा नहीं, तब किसी ने समझाया, इंजीनियर बना दिया तुम्हें यार, कहीं से भी पैसे लाए, तुम्हारे माँ बाप ने कुछ भी किया। Good afternoon, beta. These are, these are years when you are doing something. So do whatever you want to do till 27, 28 years. After that, you start getting late in your life because उसके बाद तुम्हारी एज लिमिट्स खत्म होने लग जाएगी सारी एग्जाम्स की। उसके बाद तुम्हें प्राइवेट जॉब ढूंढने में भी दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। So till 27, 28, if you want to do something, if you want to prepare for something, go for it. Who stops you from doing that? You're not late. You're not at all late. Good afternoon, Dipsmita. तो वो लोग अवेलेबल होना चाहिए ना, एक बार लॉग इन। तो देखो यार, हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे एंड वी हैव डन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई थिंक वी आर डन विद Zener Diode. We have learned everything that we can learn in Zener Diode, but still before finishing the questions of the Zener Diode, I'll solve I think 4 more questions and after that we'll put a full stop to Zener Diode because हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली। आई थिंक अब सारे सवाल बना लोगे। करेगा ऊपर आंसर देखिए। नी करंट 15 मिली एम्पेयर है, वी इनपुट यहां से यहां वेरी कर रहा है, आईएल यहां से यहां वेरी कर रहा है, जिससे मुझे ये पता लगा कि लाइन और लोड दोनों ही वेरी हो रहे हैं। ठीक है, आर एस की वैल्यू पूछ रहा है, तो मेरे पास तो अपनी वही फिक्स इक्वेशन है, आई इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ठीक है, तो इफ आई गो फॉर आई मिन, this will be equal to IZ min plus IL max। अगर मैं इसके थ्रू सॉल्व करता हूं तो ठीक है, मैंने ये मिन ले लिया तो ये इक्वेशन बन गई। आई मिन क्या होगा, वी इनपुट मिन -10 अपॉन RS इज इक्वल टू IZ min। मिन कितना है, IZ 15 मिली एम्पेयर प्लस लोड मैक्स कितना है, 85 मिली एम्पेयर। ठीक है सर, आपने मैक्स क्यों नहीं लिया, IZ मैक्स? बिकॉज अवेलेबल नहीं था मेरे पास, है ना, मेरे पास अवेलेबल नहीं था। अगर मेरे पास IZ मैक्स अवेलेबल होता, so I would have gone for I max is equal to IZ max plus IL min, then also I would have got the same answer, but मेरे पास अवेलेबिलिटी ही सिर्फ IZ नी की थी, इसलिए मैंने IZ नी का इस्तेमाल किया। So you can see RS will be equal to, what is V input minimum, that is 13 minus 10 divided by 15 plus 85, that is 100 milli, I'm writing it as kilo. It is RS is equal to 30 minus 10 3, 10 बचा 30 ohms। आप देख रहे हो क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, Zener Diode का ये वाला भी बहुत आसान सा सवाल था। तो यार अब तो इतना करवा दिया और मैंने कुछ, मतलब मैंने तुम्हें Zener Diode इतना इजी कर दिया तुम्हारे लिए, तुम्हें आइडिया भी नहीं है। 1000 मल्टीप्लाई करना भूल गया, कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रख लेना, बट बी अ लिटिल बिट केयरफुल व्हाइल डूइंग द कैलकुलेशंस। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दिस कि यार ये बहुत इजी मेथड है, इस मेथड को यूज करो एंड डू नॉट गेट द आंसर रॉन्ग। नो वे, सवाल ही पैदा नहीं होता आंसर गलत करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। button on your keyboard that RS की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। RS की मैक्सिमम वैल्यू जब होगी तो ये जो करंट होगी I,
ये मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी? मिनिमम होगी, ऑब्वियस सी बात है, मिनिमम होगी. सो यू कैन सी I min will be equal to I zener min plus I load. What is I minimum? I minimum will be V input minimum minus zener voltage 10 divided by the resistance RS जो कि मुझे निकालनी है, और ये मैक्सिमम ले रहा हूं मैं, तभी ये मिनिमम हुआ है. ठीक है, दिस इज इक्वल टू I zener minimum. What is zener minimum value? 1 milli plus I load. I load is given to me as 10 milli. So you can see RS maximum will be equal to V input min. So V input min I'll take 30 not 50, क्योंकि 50 के लिए कैलकुलेशन कर ली फिर तो ये ज्यादा आ जाएगा, और फिर जब 30 के लिए करेंगे तो ऑफ हो जाएगा जीरो डायोड. बात समझ में आ रही है? तो सबसे लोअर लिमिट के लिए करेंगे हम कैलकुलेशन. ओके, यू हैव टू डू द एनालिसिस, नेटवर्क का नॉर्मल सा पार्ट है ये. सो V input is 30 minus 10 divided by 1 plus 10 11 milli, you can write it as kilo. Hence RS max is equal to, मतलब मुझे इसका आंसर याद है, मैं लिख देता हूं, मेरे पास कैलकुलेटर है. बस देखना जरा, यही आ रहा है 1818 आ रहा है, 1818 ओम आना चाहिए, यही आ रहा है. ये की जाएगी मिनिमम इनपुट वोल्टेज पे. ठीक है, क्यों मैं बोल रहा हूं, तुमने मान लो ये लिया हुआ है. अब अगर RS की वैल्यू इससे बढ़ गई तो तुम्हारी जीनर मिनिमम करंट के नीचे करंट आ जाएगी, डायोड ब्रेकडाउन से बाहर निकल जाएगा. तो तुम्हें मिनिमम पे देखना पड़ेगा ना यार, तो ऑब्वियस ही बात है तुम्हें मिनिमम पे देखना पड़ेगा. और RS की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट की जाती है V इनपुट मैक्सिमम पे, क्योंकि जब तुम मिनिमम ले रहे हो तो करंट मैक्सिमम होगी, जब करंट मैक्सिमम होगी तो जीरो करंट मैक्सिमम होगी. तो तुम्हें बड़ी वाली वैल्यू पे लेना है ना कि जीरो डिस्ट्रॉय ना हो. समझ में आ रहा है? मैं लिख भी देता हूं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए. लेट मी राइट इट फॉर यू. मिनिमम वैल्यू ऑफ RS इज, लिख के दे दी है, आई जीनर मैक्स के ऊपर जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ये छोटा होना चाहिए RS मैक्सिमम से, क्योंकि RS मैक्सिमम के ऊपर गया तो जीनर नी करंट से कम हो जाएगी, डायोड ब्रेकडाउन के बाहर चला जाएगा, ऑफ हो जाएगा. क्लियर है यहां तक? मैं लिख ही देता हूं यार तुम लोगों को, अभी तो क्या मैं बोल रहा हूं तो सही है, बाद में फिर भूल जाओगे रिवीजन के टाइम. इफ RS is greater than RS max, then I zener, RS max से ज्यादा है, then I zener will be less than I zener min. Therefore, zener diode will not be in the breakdown region. Next, if RS is less than RS min, तो क्या होगा? I zener will be greater than I zener max. Therefore, zener diode will burn out. बेचारा जल जाएगा, जल के धुआं हो रहे हैं हम. ठीक है, सो इट विल गेट डिस्ट्रॉयड. सो आई थिंक आपको समझ में आ गया. तो अब देख रहे हो मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ. इफ यू जो लोग मेरे से पहले से पढ़ चुके हैं उनको तो पता है, जो नए पढ़ रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू टच एवरी सिंगल मॉडल दैट आई कैन टच इन द जीनर डायोड.
सब कुछ निकलवा डाला है मैंने, मतलब आपको कुछ नया नहीं लगेगा, गेट का कुछ पता नहीं है, दे कैन फ्रेम एनीथिंग न्यू आउट ऑफ द ब्लू, बट आपको मैंने इतना पढ़ा दिया कि मुझे लगता नहीं आप कुछ मिस करोगे, आप लोग, मुझे नहीं लगता आप मिस करोगे, ठीक है ना। चलिए एक और सवाल की तरफ चलते हैं। लैग हो रहा है, ठीक है। एनालॉग जो है इट्स अ वेरी 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 बिग सब्जेक्ट, डू नॉट आस्क मी डाउट्स व्हिच आर रिलेटेड टू द फीलिंग, बिकॉज आई नो यू मस्ट बी वेरी, क्या होता, मैंने बोला हाँ ये तो आ सकता, इन गेटिंग द पॉइंट, बट समहाउ किसी को डिफिकल्टी हो रही है। मेरे ख्याल से मैंने लगभग सारे गेट के निपटा दिए होंगे, 4-5 बचे हुए हैं, वो मैं आप जो है मैं ऑन फाइन। वी इनपुट बताया है कितना है और वी आउटपुट भी बताया है कितना है, तो बोल रहे हैं जीनर करंट और लोड करंट बताओ कितनी होगी, तो मैंने कहा चलो जीनर डायोड दिया हुआ है तो उसको पहले बनाएं ब्रेक डाउन, उसके ब्रेक डाउन में। V input, how much is V input? 10, okay, then 3.3, सौरभ बेटा सर्किट एक ही टाइप का आएगा ना, इसमें डिफरेंट कैसे आ सकता है, बिकॉज देखना फिर भावना है, फिर भावना है, बिकॉज Zener diode is acting as a regulator circuit. If it is acting as a regulator circuit, it means it must be connected in parallel with the load so that the voltage becomes constant because we want regulated voltage supply. तो ये हिस्सा फिक्स हो गया सौरभ, इतना तो फिक्स हो गया बेटा, ये तो चेंज नहीं होगा। उसके बाद जीनर डायोड के इनपुट पे क्या था, जो तुम्हारी डीसी सप्लाई है अनरेगुलेटेड वो आएगी, तो तुम्हारी अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई यहां लग जाती है, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द सिमिलर काइंड ऑफ अ सर्किट ऑल द टाइम, ठीक है, ठीक है, ओके, लेट्स कम बैक। आउटपुट वोल्टेज कितनी है बेटा, आउटपुट वोल्टेज 3.5 वोल्ट। अबे तुम लोग मेरे पे विश्वास क्यों नहीं करते हो कि अगर मैं करवा रहा हूं तो यही होगा, है ना, मैं करवा रहा हूं तो यही होगा, और अगर कुछ आया तो फिर आया, ठीक है ना, फिर कुछ आया तो आया फिर, ठीक है, मैं क्या करूं, मैंने तुम्हें जीरो डायोड पूरा समझा दिया है, जितना है सब कुछ पढ़ा दिया, मैंने तुम्हें 8 किताबें पढ़ा दी, बिकॉज व्हेन आई प्रिपेयर्ड द नोट्स एट दैट टाइम मैंने 8 किताबें पढ़ी थी, मैं अभी भी अपने आप को रिफ्रेश कर रहा हूँ, पूरा बार बार दोबारा से देखता रहता हूँ। 3.5 वोल्ट बेटा, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मेरी बात पे एक चीज पे विश्वास कर लो, ठीक है, ट्रस्ट मी आई विल नेवर एवर चीट यू पीपल, इट इज नॉट इन माई नेचर, मेरी नेचर में यही है, मैंने जिंदगी में कभी किसी के साथ गलत नहीं किया और ना ही किसी को गलत करने दिया अपने साथ, मेरा सिंपल सा फंडा रहा है मेरी लाइफ का, मैं अपने प्रोफेशन के साथ चीट नहीं कर सकता, मैं खासकर बच्चों के साथ गलत नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम वेरी मच इमोशनली अटैच्ड विद यू पीपल, क्योंकि इतने सालों से जो तुमने मुझे प्यार दिया है, इतने सालों से मैं जब स्टूडेंट रहा हूँ और जो मेरी एक्सपेक्टेशन रही है उसी की वजह से मैं टीचर बना हूँ, मैं किस लिए बना हूँ, मैं तुम्हें कभी टीच नहीं करूंगा, हो सकता है कि भाई मेरी ही लिमिटेशन हो कि भाई मुझे पढ़ाना इतना ही आता है, बस मैं उतना, वो मेरी लिमिटेशन हो सकती है, पर जितना मेरे से हो पाता है मैं उससे बढ़कर तुम्हारे लिए करता हूँ, तो ये मान लिया करो कि मैं नहीं कर रहा हूँ चीट, अगर मैं एक ही टाइप का मॉडल करवा रहा हूँ तो एक ही टाइप के सवाल होंगे हर जगह, ठीक है ना। चलो, सो 3.5 वोल्ट ये दे रखा है, अब ये मेरे पास जो सर्किट में इंफॉर्मेशन थी मैंने सारी बना डाली, इट्स अ नॉर्मल नेटवर्क सर्किट, ये एक नॉर्मल नेटवर्क एनालिसिस का सर्किट है, जिस सर्किट में वो हमें कह रहा है कि आप मुझे जीनर करंट और आप मुझे लोड करंट निकाल के दीजिए, तो ये नेटवर्क का नॉर्मल सा सर्किट बहुत आसान सा सर्किट है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, कैसे देखिए बेटा यहाँ पे, तो लो भाई आई जीनर तो आ गया, पहले जीनर करंट कितनी आई 3.5 माइनस 3.3, अपोजिंग है ये, ठीक है, 3.5 माइनस 3.3 divided by 100, so this is equal to 0.2 2 मिली एम्पेयर, तो आई जीनर आ गया 2 मिली एम्पेयर। अब इसके बाद निकालते हैं आई एल, आई एल क्या होगा, इनकमिंग करंट आई विच इज 10 माइनस 3.5 डिवाइडेड बाई 2.2 के, इसको 2.2 मिली कर लेते हैं, फ्रॉम हियर
So this is coming as 0.9545, 0.95 कर लेते हैं, 0.95 मिली एम्पियर। 0.95 आ रहा है यार, 0.95 आया है ना, ठीक है। सो अगेन इट्स एन इजी क्वेश्चन, अगर जीनर रजिस्टर दे दी तो रिप्लेस कर देना जीनर रजिस्टर से, उससे क्या है, कोई वो थोड़ी ना है, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। और मेरा कोई it becomes really useful, and after some point of time, after a year or and a half, when you will think about all those things, you will start laughing what I did, basically why I used to feel so bad and cry thinking about all those things. It happens, but you have to come out of it. कोई तुम्हें गुरु मंत्र नहीं देगा और बोलेगा बस बोला कुछ और तुम बुरा करोगे। सत्य का अपना दुख देखो, सत्य का अलग ही चल रहा है। सर आप मेरा दुख देखिए, सॉल्व करते हैं। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट एग्जामिनेशन, चेंज कर दिया। अब सुबह तुम लोग अपने रोने रो लो यार, रो लो तुम लोग अपने रोने, आज सुबह दो वही। आई रीअरेंज दिस सर्किट लाइक दिस। तुम देखो ये यही सर्किट है ना, ये यही सर्किट है, बस इसको ऐसे बजाने के बाद बजाए थोड़ा डिजाइनिंग कर दी, सीधा कर दो इसको, यहां से सीधा कर दो, क्या फर्क पड़ता है। तो लेट मी रीड्रॉ इट फॉर अवर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर अवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा अब जो इंफॉर्मेशन है अपने पास उस इंफॉर्मेशन को फिल कर देते हैं। यहाँ पे लोड के अक्रॉस उसने बोला है टू मेंटेन 5 वोल्ट अक्रॉस आरएल, इसके अक्रॉस 5 वोल्ट मेंटेन करना है, मतलब जीनर जब ब्रेकडाउन में जाएगा तो 5 होगा। चलो भाई ये इंफॉर्मेशन आ गई। जीनर नहीं दे रखी है उसने 10 मिली एम्पेयर, तो आईजेड लिख देते हैं इसको, ठीक है। नाउ यहां से करंट सपोज आई जो हम लिखते हैं, हमारा स्टैंडर्ड नोटेशंस है, यहां से करंट आई एल आई। वो कह रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ आरएल कितना होगा टू मेंटेन दिस, ठीक है बेटा। आरएल मिन बोल रहा है, आरएल जब मिन होगा, ये लोड करंट मिन होगी कि मैक्स होगी, ये लोड करंट मिन होगी कि मैक्स होगी, मैक्स होगी, मैक्स होगी। इनपुट करंट आई वेरिएबल है कि फिक्स्ड है, इनपुट करंट आई वेरिएबल है कि फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। So we can say that I will be equal to, if IL is max, then I zener is min. Fine. I कितना होगा 10 minus 5 divided by 100. I zener min नहीं दी रखी है करंट, बिल्कुल 10 मिली, प्लस IL मैक्स। यहां से हम लोग IL मैक्स निकाल लेंगे, टेन माइनस 5 5, 50, 50 माइनस 10 40, 40 मिली एम्पेयर। तो बेटा IL मैक्स तो निकल के आ गया, IL मैक्स आ गया तो RL मिन भी आ गया। क्यों? RL min will be V zener, that is 5 upon IL max 40. इसका मतलब RL min is coming as 1 by 8 is 12.5%, ठीक है। तो 12.5%, एक जीरो और है तो 125। लो भाई मिनिमम करंट निकल गई, मिनिमम करंट निकल गई। अब मुझे क्या निकालना है, नेक्स्ट टास्क था मेरा, मुझे P जीनर निकालना था।
क्या बोला था उसने? मिनिमम पावर रेटिंग। क्या लेंगे? मैक्सिमम वाली। यही वो गेट का क्वेश्चन जब मैं कह रहा था तुम्हें मिनिमम पावर रेटिंग लिख के दे दिया इन लोगों ने, बट हमें क्या लेना था? मैक्स लेना था। मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। गुड गुड। पी जेड मैक्स will be V zener, I zener max. अब I zener max तो दिया नहीं है भाई इस बार. Is there any information he has provided through which he has given I zener max? No, he has not given I zener max. That's why this question became interesting. Okay, so let's have a look. So current I, because मेरी तो basic current equation है. I have this basic current equation. मैं तो इसी से सब कुछ इसी से करते हैं हम लोग, है ना? तो मैंने कहा I zener max. तो लोड मिन करना पड़ेगा क्योंकि लोड वेरिएबल है इस बार. तो मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है यार. आई हैव नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस. तो मैंने बोला कि चलो फिर यहां चलते हैं, आई एल मिन. तो भाई फिर इसको बिल्कुल मिनिमम पे लेके जाते हैं. दैट्स व्हाट आई कैन डू. इसको मिनिमम पे लेके जाते हैं बिकॉज मेरे पास और कुछ आ रहा नहीं है. आई हैव नो अदर वे. This is the equation. I can solve the question through this equation only. So I said I zener max is not given to me. I value I already know. IL min is not known to me. So if somehow I can find IL min value, I can decode my question. But how to find IL min? IL min can only happen when the load resistance is infinite. That is IL min is zero. That is the minimum current that I can take IL min to. And that is possible in this case because RL is variable. Okay. So I'm using this concept now. I'm saying that for IZ max, this. ऐसे लिखते हैं IL will be minimum when RL will be tending to infinity. That is, IL min will be equal to 0. IL min कितना होगा? 0 होगा. कुछ मिटा तो जो भी है, IL min will be 0. So therefore, what is I? I just calculated over here. 10 minus 5 by 100, that is 50 milli. 50 milli will be equal to I zener max plus 0. That is maximum zener current is 50 milli, जो कि इस सर्किट में जा सकती है. इस सर्किट में मैक्सिमम जीनर करंट कितनी झेलेगा? ये 50 मैक्सिमम. तो भाई उसके हिसाब से हम डिजाइन कर लेंगे. अब इसको आगे बात समझ में, उस हिसाब से हम इसको डिजाइन कर लेंगे. तो हमने बोला आई जीनर मैक्सिमम. तो भैया इसका मतलब मेरा जो जीनर डायोड मुझे यहां यूज करना है, आई जी वीजी कितना था? 5 दिया था ना. वीजी में कितना लिया था? 5. सो 5 into 50 मिली, that is 250. क्योंकि मैक्सिमम करंट से जो मैक्सिमम पावर यहां आ रही है वो 250 आ रही है. अगर तुमने 250 के नीचे लगाया, हो सकता है लोड हटा दिया तुमने, पूरी यहां से 250 करके डिस्ट्रॉय कर देगा. सो इस वजह से अब हमने इसको जीरो किया करंट को, ये मैक्सिमम निकाला और उस मैक्सिमम के लिए इसको डिजाइन कर दिया. बोलो अब समझ में आया? क्लियर हो गया सारा? क्यों किया, कैसे किया, कहानी दिमाग में क्लियर हुई? निकालती. बट द थिंग इज दैट पावर रेटिंग इज सेइंग दैट. तो मिनिमम वर्ड यहां यूज करके हम ये समझ पा रहे हैं कि मिनिमम पावर रेटिंग कितनी होगी. समझ रहे हो कि वो मिनिमम कितना झेल लेगा. जैसे मैंने उस समय समझाया था, तो मैंने कहा था मिन क्यों लिखना, मैक्स लिख दो. मिन क्यों लिखना, मैक्स लिख दो. तो मतलब वो कहने का मतलब है मिनिमम कितनी, मतलब कितनी पावर का डायोड बनाना पड़ेगा, कि उसके नीचे तो बना ही नहीं सकते तुम लोग. तो उतना पावर का अगर तुम्हें डायोड बनाना पड़ेगा तो उसके लिए तुम्हें मैक्सिमम करंट यहां से निकालनी पड़ेगा. आई थिंक मैंने समझा दिया. ठीक है.
वो कह रहा है जीनर की नी वोल्टेज 8 वोल्ट है, मतलब ये 8 वोल्ट है, मतलब इफ यू वांट टू ड्रॉ द सर्किट अगेन यू कैन डू दैट, मैं नहीं बना रहा हूँ, बनाना चाहते हो 8 वोल्ट करके बना लो। जीनर की नी करंट अपन को मालूम है, मैक्सिमम अलाउड पावर डिसिपेशन मालूम है, तो मुझे जीनर की मैक्सिमम करंट भी मालूम है। लोड करंट बोल रहा है इतनी है, लोड भी बता दिया उसने, वोल्टेज वेरी कर रही है, फाइंड द रेंज ऑफ आरएस फॉर रेगुलेटर सर्किट। तो पहले इनपुट करंट को मिनिमम ले लेते हैं, बिकॉज ये वेरिएबल है, ठीक है। इनपुट करंट मिनिमम, तो आरएस क्या निकलेगा, मिन की मैक्स, आरएस क्या निकलेगा, मैक्स, गुड, आरएस निकलेगा मैक्स। तो इनपुट करंट मिनिमम, दिस इज इक्वल टू जीनर करंट मिन, लोड करंट तो फिक्स है, लोड करंट फिक्स है। व्हाट इज आई मिन, वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू 12, जीनर की वोल्टेज 8 अपॉन आरएस निकालना है जो कि मैक्स होगा, जीनर मिनिमम 2 मिली प्लस लोड करंट 25 मिली, 27 के, 4/27 देखना कितना आ रहा है बेटा, 148.14। तो ये हमारे पास आर एस मैक्स निकल के आ गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। लेट्स गो फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो अब क्या करेंगे, आई मैक्स, आई नेक्स्ट पेज में करते हैं फिर। आई मैक्स इज इक्वल टू आई जेड मैक्स प्लस आई एल प्लस आई एल, ये है हमारे पास, ठीक है। सो अब मुझे क्या निकालना है, पहले मुझे पहले आई जीना मैक्स चाहिए, उसके लिए मुझे पी जेड मैक्स दिया हुआ है उन्होंने, जो कि होगा वी जेड इंटू आई जेड मैक्स। इसका मतलब आई जेड मैक्स हमारे पास आ रहा है पी जेड मैक्स जो कि 480 था, डिवाइडेड बाई 8। तो मैक्सिमम फॉर्मूले में आई मैक्स क्या होगा, 15 माइनस 8 बाई आर एस मिन, 15 माइनस 8 अपॉन आर एस मिन इज इक्वल टू आई जेड मैक्स 60 मिली प्लस आई लोड 25 मिली, so RS min will be 7 upon 85 के, बताना बेटा कितना आ रहा है ये, 82.35, 82.35, थैंक यू, ये अपना मिन निकल गया। तो रेंज ऑफ RS की अगर हम बात करें तो RS आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 82.35 लेस देन इक्वल टू 148.18, 148.14, 148.14, ये हमारे पास निकल के आया है। करने की अब जरूरत नहीं, you don't need to do any more practice, just solve these questions again. So in the diode family we are done with the first chunk, that is a regulated power supply or DC power supply. In DC power supply we had a lot of stages, we had a lot of stages, we have gone through all the stages, simple as that. So let's write it down. For wave shaping circuits प्रकार के होते हैं, they are of two. लीनियर क्या होते हैं, नाम से पता लग रहा है, it consists of linear elements like RLC, तो linear wave shaping circuits will consist of only linear elements. Non-linear wave shaping circuits will consist of at least one non-linear element. तो जिसमें सिर्फ लीनियर एलिमेंट्स हैं वो लीनियर वेव शेपिंग नेटवर्क हो गया, जिसमें हमारे पास कम से कम एक नॉन लीनियर एलिमेंट है वो नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट हो गया। सो लीनियर की बात करते हैं, इट consists of
linear elements like RLC. तो लीनियर वेव शेपिंग सर्किट की एग्जांपल क्या है? वेरी इजी सिंपल सर्किट्स, हाफ हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर जो है वो एग्जांपल है लीनियर वेव शेपिंग सर्किट की। नॉन लीनियर, एक consists of at least one non-linear device. इसकी एग्जांपल क्या है? क्लिपर। ठीक है, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब ये तीन चीजें पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे हम पहले हाफ पास हाई पास फिल्टर पढ़ना है, हाफ वेव रेक्टिफायर बोल बोल के हाफ बार बार। पहले हाई पास फिल्टर पढ़ना है, फिर हमें लो पास फिल्टर पढ़ना है। जब इससे खत्म कर देंगे देन वी विल एंटर इनटू क्लिपर। जो क्लिपर्स है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में, क्योंकि डायोड फैमिली में तो सब यही चीजें इंपॉर्टेंट है बस, है ना। तो क्लिपर से क्वेश्चन आते हैं और टफ है, मतलब आपको एनालिसिस करना होगा। मैं जितना मर्जी सिखा दूं, दिमाग तो आपको चाहिए उसके लिए थोड़ा बहुत। तो आई थिंक नेटवर्क पढ़ लिया होगा अभी तक, काफी देर से बोल रहा हूँ मैं, तो काफी दिन हो गए, तो यूज होना है बेटा, यूज होना है, बट ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। मैं तुम्हें एक सिंपल सा मेथड बताऊंगा, मतलब मेथड सारे बताऊंगा, बट एक शॉर्ट मेथड है। मैं भी जब बहुत टफ क्वेश्चन फंसता है वही यूज करता हूँ। वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, 15-20-30 सेकंड एक्स्ट्रा लगते हैं, बट क्वेश्चन गलत करने से बेटर है वही यूज कर लेंगे, तो सीखेंगे। बट क्लिपर में पहुंचने में भी समय है, उससे पहले हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर के बारे में बातचीत की जाएगी। सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद द हाई पास फिल्टर। So the first topic that we are starting with is high pass filter. It's a high pass filter. I want to check how. Sir, if you're saying it's a high pass filter, then please tell me how it is a high pass filter. So when low frequency is there, f को 0 ले लेते हैं, low frequency. जब f 0 होगा, can you tell me what will be the capacitive reactance? Sir, xc is 1 by omega c or 1 by 2 pi fc. If f is 0, then the capacitive reactance will be infinite. Capacitive reactance will be infinite. अगर ये infinite है तो ये क्या करेगा? Open circuit. Can you tell me what will be the output voltage? The output voltage will be 0 because no current will be flowing from here. Whatever voltage, input voltage is there, it will be appearing across the capacitor. पूरी input voltage capacitor के across appear करेगी। तो सिग्नल क्या हुआ? आउटपुट कितना आया? 0। लिख देता हूं यहाँ पे। V output is 0 volt. That is going or reaching to the output. तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को तो इसने पहुंचने नहीं दिया, स्टॉप कर दिया। तुमने इनपुट जो भी दिया लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आउटपुट पे आ ही नहीं पाया। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट हाई फ्रीक्वेंसी पे। हाई फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी को इनफाइनाइट ले लेते हैं। नाउ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यू नो दैट इट इज 1 by 2 pi fc. If f is infinite, the capacitive reactance will be 0. If capacitive reactance is 0, in that case my capacitor will act as a short circuit. केस में V आउटपुट किसके बराबर आया? V इनपुट के। तो जो भी मेरी इनपुट वोल्टेज है पूरी की पूरी आउटपुट पे मिल रही है। इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी पे पूरा का पूरा सिग्नल मेरा पास हो जा रहा है। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे पूरा पास हो रहा है, लो फ्रीक्वेंसी पे स्टॉप हो रहा है। इजंट इट अ हाई पास फिल्टर? दिस इज व्हाट हाई पास फिल्टर डज, है ना? सो लेट अस राइट इट डाउन। तो अभी तक हमने ये फैक्ट तो एस्टेब्लिश कर लिया कि ये जो सर्किट मैंने बनाया है ये एक हाई पास फिल्टर का सर्किट है।
जिन्होंने नेटवर्क पढ़ा है आपको ऑलरेडी पता था, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैंने बता दिया। अब इसके बाद इसका ट्रांसफर फंक्शन टाउ एस अपॉन 1 प्लस टाउ एस, यू ऑलरेडी नो दैट, पर जो नए बच्चे हैं फिर करना पड़ेगा मुझे, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन जल्दी से निकाल दे। ओके, लेट्स फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन। कंट्रोल में लिख दिया of the input with all the initial conditions equal to 0, that's why I'm assuming or considering the capacitor is initially uncharged. जो नए बच्चे हैं, अगर कोई भी मेरे शब्द बहुत भारी लगे तो प्लीज मुझसे पूछ लेना, मैं उसको सरल भाषा में बोल दूंगा, ठीक है। सो मुझे आउटपुट का लैप्लास लेके और इनपुट का लैप्लास लेके दोनों के रेशियो लेनी है, मतलब इस सर्किट से आपको V आउटपुट S अपॉन V इनपुट S निकालना है। So let's go for what? Let's go for the voltage division. What will be V output? V input upon the sum of these two multiplied by R. So V output S is equal to V input S divided by R plus 1 by CS multiplied by S in the J ओमेगा। नए बच्चे ये क्या हो गया बेटा, ये होता है, अब बस S की जगह J ओमेगा को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा मुझे। ओके, अपॉन J ओमेगा RC आ गया, which can be further written as V output upon V input is equal to 1 upon 1 माइनस J, इस J को मैं ऊपर ले गया, V output upon V input is equal to 1 upon what is omega L? Omega L is the cut off frequency। अभी इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, अदरवाइज बाकी लोगों को पता है, ठीक है। क्या है यार ये होगा इसको, बिना लाइन के कर, बिना लाइन के कर रहा हूं। सो V आउटपुट, अच्छा ये आ गया, V आउटपुट मीन दिस वेयर ओमेगा L इज इक्वल टू 1 बाई R C, वेयर लिख देते हैं, फिर ओमेगा L इज 1 बाई R C, FL by F. Now let's write it in terms minus minus plus tan inverse of FL by F. ये आपका एक हाई पास फिल्टर का मैग्नीट्यूड एंड एंगल निकल के आ गया, यहाँ लिख देते हैं मैग्नीट्यूड एंड फेज। क्लियर है बेटा, इज दिस क्लियर? ठीक है, अब अगर मैं इस मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स को प्लॉट करूं तो ये कुछ ऐसा आता है, magnitude is equal to the cutoff frequency, this will be 1 by root 2, 1 by root 2। सो बेटा FL क्या है, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कब? जब आपका मैग्नीट्यूड 1 by root 2 होता है। तो जो लोग पढ़ चुके हैं आपको तो पता ही है, कितनी बार अभी तक यूज कर चुके हैं जो सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मेरे से। सो FL is that frequency at which the magnitude is 1 by root 2 times of the maximum, that is 0.707. So at F equal to FL, M will be equal to 1 upon under root of 1 plus 1 square, that is 1 by root 2, that is 1 by root 2। सही है? तो FL जो है वो हमारी क्या होती है, FL इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और 3 dB फ्रीक्वेंसी और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। कई बार इस बारे में बातचीत हो चुकी है,
ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे मेरे सिस्टम का मैग्नीट्यूड अपने मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के 1/√2 टाइम्स होता है। दिख ही रहा है, या फिर पूछ लेना बेटा, ठीक है। सो FL is the cutoff frequency FL is the cutoff frequency or 3 dB frequency or half power by √2 time of its is 1/2 pi RC या हाई पास फिल्टर की, हाई पास फिल्टर की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां से, मतलब ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे ये चीज जो समझाई थी, आप इसको मैग्नीट्यूड वैल्यू व्हेन फ्रीक्वेंसी इज 0, f इज 0, इंफिनिटी 1/infinity 0, m इज 0, दैट इज स्टॉप बैंड सिग्नल। क्योंकि मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स अगर 0 है तो मतलब आपका सिग्नल आउटपुट पे नहीं जा रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं है, because otherwise V output magnitude will be magnitude response into V input magnitude at that particular frequency. And at f equal to infinity, infinity 0, 1/1, 1, m is 1, V output V input के मैग्नीट्यूड के बराबर है, सिग्नल पास हो जा रहा है। वही तो हमारा हाई पास फिल्टर है, वही तो हमारा हाई पास फिल्टर है, ठीक है, ठीक है। सर आपने तो हेडिंग डाली थी वेव शेपिंग नेटवर्क्स, आप ये क्या हाई पास फिल्टर पढ़ाए जा रहे हो? तो बेटा हाई पास फिल्टर इज अ वेव शेपिंग नेटवर्क, तो वेव तो शेप हुई, वेव तो शेप होती नजर आई नहीं। चलो देखते हैं। तो अभी तक तो मैंने सिर्फ हाई पास फिल्टर ही पढ़ाया ना आपको, अभी तक तो मैं हाई पास फिल्टर पढ़ा रहा था, अब वेव शेपिंग शुरू करता हूँ, ठीक है। अब वेव शेपिंग के बारे में बात करते हैं। So square wave response मेरा क्या आएगा, दैट इज स्क्वायर वेव रिस्पांस। जैसे हम बोलते हैं इंपल्स रिस्पांस, स्टेप रिस्पांस कंट्रोल सिस्टम में, व्हेन यू गिव अ स्टेप इनपुट द आउटपुट इज स्टेप रिस्पांस, व्हेन यू गिव एन इंपल्स इनपुट द आउटपुट इज इंपल्स रिस्पांस, इफ यू गिव अ स्क्वायर इनपुट, स्क्वायर वेव इनपुट, द आउटपुट इज स्क्वायर वेव रिस्पांस। So I'm going for case number, the time constant of this circuit will be R into C, ठीक है। जिन लोगों ने नेटवर्क नहीं पढ़ा या ट्रांजिएंट तक नहीं पहुंचे हो, कुछ होता है मान लो, कह रहा हूं, then you will reach over there, you will, और अगर कोई चीज डिस्चार्ज हो रही है तो वो जल्दी डिस्चार्ज होगी क्योंकि टाइम कांस्टेंट कम है। अगर टाइम कांस्टेंट ज्यादा है तो कोई चीज अगर डिस्चार्ज हो रही है तो वो लेट, धीरे धीरे डिस्चार्ज होगी, अगर टाइम कांस्टेंट कम है तो वो जल्दी डिस्चार्ज होगी। ये बात समझ में आई? इतना तो समझ में आया होगा। इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूं अपने लिए तो ये है कि वो वेवफॉर्म के टाइम पीरियड से बहुत बड़ा है। तो क्या होगा? नाउ आई वांट टू डू द एनालिसिस, लेट्स डू इट। कैन यू टेल मी व्हाट विल द वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर? t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर की वोल्टेज कितनी होगी? शाबाश, 0, because initially I told you the capacitor was uncharged or unenergized, and you know that capacitor does not allow the sudden change in voltage, hence VC0 minus will be equal to VC0, therefore initially the capacitor voltage is 0. Q, because uncharged capacitor. अनचार्ज कैपेसिटर। तो बेटा अगर कैपेसिटर की वोल्टेज 0 है, सो V आउटपुट इज इक्वल टू V इनपुट एट दैट टाइम, है ना? V आउटपुट इज इक्वल टू V इनपुट, so V output is equal to V input, where V input is Vm, where V input is Vm at t equal to 0, at t equal to 0. Next, अब टाइम t 0 से बड़ा है
लेकिन टी नॉट बाई टू से छोटा है. इट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन टी नॉट बाई टू. सो लेट्स सी टी, क्योंकि जब t 0 से t नॉट बाई टू है, इनपुट वोल्टेज Vm है, तो मैंने यहाँ Vm लिख दिया. If you apply the KVL, V naught will be minus Vc plus Vm, so I have written Vm minus Vc. Okay? कैपेसिटर इस वोल्टेज के थ्रू ग्रेजुअली, सडनली तो नहीं होगा, ग्रेजुअली चार्ज होगा, है ना? और क्यों ग्रेजुअली? और वो बहुत धीरे धीरे होगा. क्यों बहुत धीरे धीरे होगा? बिकॉज चार्जिंग टाइम कांस्टेंट इज वेरी लार्ज. चार्जिंग टाइम कांस्टेंट आरसी बहुत बड़ा है, इसकी वजह से कैपेसिटर बहुत धीरे 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 चार्ज होगा. समझ में आ रहा है? स्लोली S tau is very large. चलो, बाई 2 के ऊपर क्या हुआ हो जाएगा? Vc will hold its value because capacitor does not allow the sudden change in voltage. ठीक है, फिर से Vc अपनी वैल्यू को होल्ड करेगा. फिर से बनाना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट चल नहीं रहा आज. बाय शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर वोल्टेज पोलैरिटी सेम, क्योंकि होल्ड करेगा, सडन चेंज अलाउ नहीं करता है. सो यू कैन सी V नॉट इज इक्वल टू माइनस Vc एट दिस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट. इक्वल टू है, रेंज नहीं है. एट दिस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस Vc. बच्चे, नए बच्चे बताएंगे. पुराने बच्चे तो ठीक है, जिन लोगों ने नेटवर्क वेटवर्क सब लोग पढ़ रखा है, तुम्हारे लिए तो बहुत इजी है. जो पहली बार पढ़ रहे हैं बेटा, आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलो ठीक है. नेक्स्ट, टी अब टी नॉट बाई टू के ऊपर है और टी नॉट के नीचे है. मतलब मैं यहां पे हूं, इस रेंज पे हूं. वी इनपुट क्या है? 0. अगर V इनपुट 0 है, मतलब यही सर्किट बना सेम. टी नॉट बाई टू पे जो था वही सर्किट अभी भी रहेगा. अब लेकिन क्या होगा, क्योंकि समय बढ़ रहा है, समय एक रेंज है, तो अब ये कैपेसिटर स्लोली स्लोली इस रेजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू होगा. ठीक है, ठीक है. V input is 0 and therefore now capacitor discharges through R. गलत लिख दिया, चलो कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता, समझ तो तुम जाओगे. वेरी स्लोली. मैं नाउ कैपेसिटर डिस्चार्जेस वेरी स्लोली थ्रू आर, या नाउ कैपेसिटर डिस्चार्जेस थ्रू आर वेरी स्लोली, ऐसे लिख दो. वेरी स्लोली. और इस केस में V आउटपुट कितना होगा? V आउटपुट माइनस Vc के बराबर होगा. यहां तक सबको क्लियर है? ऐसा मैं मान रहा हूं. अगर नहीं है यू कैन आस्क मी, नहीं है यू कैन आस्क मी. आउटपुट किसके बराबर था? Vm के, क्योंकि कैपेसिटर वोल्टेज 0 थी. आउटपुट किसके बराबर था? Vm के बराबर था. जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड देना. टू 0 पे V आउटपुट और V इनपुट बराबर हैं. अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से देखना. T जब 0 से T नॉट बाई टू होगा, ध्यान से देखना, कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज करेगा. पहले कैपेसिटर 0 था, ध्यान से सुनना, कैपेसिटर पहले 0 था. अब जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा, वैसे वैसे V आउटपुट जो है वो घटना शुरू होगा Vm से. मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे अपना कैपेसिटर, देखो
कैपेसिटर बिल्कुल स्लो ऐसे से चार्ज हो रहा है, जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा ये बढ़ेगा तो टोटल वी आउटपुट वीएम से नीचे आना शुरू होगा। ओके, सो नाउ तो धीरे धीरे वी आउटपुट घटना शुरू होगा। यहीं तक आएगा, क्यों? बिकॉज बहुत धीरे 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 जो है कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो वो T0/2 तक चार्ज हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? बिकॉज टाइम कांस्टेंट भाई T0 से बहुत ज्यादा था। जब टाइम कांस्टेंट T0 से बहुत ज्यादा था, वो अपने एक टाइम कांस्टेंट में तो 63.2% चार्ज होगा। तुम कह रहे हो, समझ में आ रहा है कि मैं डिटेल में बताऊं? ऐसे नहीं, लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी यहां तक। इस पॉइंट पे क्या होगा? एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट व्हाट विल हैपन? देखते हैं यहां पे कितनी वोल्ट। हमने क्या बोला? वी आउटपुट इज वीएम माइनस वीसी। तो भाई ये वीएम से जितना नीचे है ये वीसी है। और अब वो कह रहा है, आराम से देखो, आराम से देखो, आया समझ में? बिकॉज वी आउटपुट हैज सडनली बिकम इक्वल टू माइनस वीसी, एंड व्हाट वाज वीसी एट T0/2? दिस पोर्शन, तो माइनस वीसी नीचे आ गया। ओके, क्योंकि कैपेसिटर तो अपनी वोल्टेज चेंज नहीं होने देगा। अब क्या होगा? T0/2 से T0 तक कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होगा एंड इट विल गो टुवर्ड जीरो। क्योंकि भैया T0/2 टाइम में जितना चार्ज हुआ T0/2 टाइम में उतना ही तो डिस्चार्ज होगा, तो जीरो पे नहीं पहुंचेगा भाई। T0/2 टाइम में जितना वो चार्ज लेता है T0/2 टाइम में उतना ही चार्ज वो देगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट सेम है। आ रहा है समझ? आ रहा है समझ? एंड अगेन फ्रॉम जीरो सेम स्टोरी, क्योंकि फिर से जीरो से चालू हुआ, फिर कैपेसिटर चार्ज होगा, वीएम वोल्टेज लूज करेगा, फिर T0/2 पे वी आउटपुट विल बी माइनस वीसी, फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, जीरो होगा, फिर 2T0 पे सडनली वीएम हो जाएगा आउटपुट, फिर मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। ये क्या है? आउटपुट वोल्टेज येलो वाली V0। क्लियर है बेटा? क्लियर है? चल सकता हूं आगे? बोलो। ठीक है, ये जो नीचे आया है इतना, ये जो कैपेसिटर चार्ज हुआ है वो वाला बोल रहा हूं। दिस इज कॉल्ड एज टिल्ट। कि कितना मेरा आउटपुट वोल्टेज में टिल्ट आया। एंड टिल्ट किसके बराबर है? डेल्टा वी नॉट चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज। टिल्ट क्या बोल रहे हैं? इट इज द decrease in the output voltage from t equal to 0 to t equal to T0/2। ठीक है, सो नाउ डेल्टा वी नॉट क्या है? डेल्टा वी नॉट इज, कहने से कैपेसिटर वोल्टेज at t equal to T0/2। give me a second। It is a decrease in delta V naught is the capacitor voltage at t equal to T0/2। क्योंकि ये टिल्ट क्या है? कैपेसिटर वोल्टेज,
आउटपुट वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज ध्यान रखना, जितना ये नीचे आया था उतना कैपेसिटर चार्ज हुआ था, याद है? तो ये कितना होगा? जितना कैपेसिटर चार्ज हुआ होगा, है ना? मैंने ऐसे बताया था ना कि ये by 2 वैल्यू का डेल्टा वी नॉट कैलकुलेट करने लगे हैं। तो कैपेसिटर की वोल्टेज की बात हो रही है ना, तो लिखो कैपेसिटर की वोल्टेज का एक्सप्रेशन, व्हेन कैपेसिटर is charging t greater than 0 less than t naught by 2। तो जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर की चार्जिंग का एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा? फाइनल वैल्यू प्लस इनिशियल माइनस फाइनल e to the power minus t by tau। Let's substitute the values. So VCT will be equal to, कैपेसिटर फाइनली किस वैल्यू पे चार्ज होता? Vm पे, जो ये लगा हुआ है, फाइनली कैपेसिटर Vm पे चार्ज होने के लिए जा रहा था। सो फाइनल वैल्यू इज Vm प्लस इनिशियल वैल्यू कैपेसिटर की 0 थी, फाइनल Vm मैंने कॉमन ले लिया, so it is 1 minus e to the power minus t by tau where time constant is RC। ठीक है, ठीक है। जिन लोगों ने बेटा नेटवर्क नहीं पढ़ा है, आपको इक्वेशन समझ में नहीं आएगी, मैंने लिख दी है, जस्ट लेट इट बी इन योर नोट्स। ये बहुत इजी बच्चों वाली इक्वेशन है, जब आप नेटवर्क पढ़ेंगे ट्रांजिएंट, बहुत इजी इक्वेशन है, यू विल अंडरस्टैंड दैट। बट प्लीज आई एम अगेन एंड अगेन आस्किंग यू, पैरेलली पढ़ते रहिए नेटवर्क, नेटवर्क खत्म करिए साथ साथ में। सो e पावर माइनस एक्स, ये जब x, मैंने कहा जब मोमेंटम चल रहा होता है उस समय बीच में मत डिस्टर्ब किया करो। शुभारंभ, तुम्हें क्या इक्वेशन याद नहीं है ये वाली बच्चों वाली? कैसी बात कर रहे हो तुम? कंफर्टेबली नाउ, e टू द पावर माइनस t बाई आरसी, इसके लिए x लिख देंगे 1 माइनस t बाई आरसी, 1 माइनस, उसका भी लिखना भूल गया, 1 माइनस। So now you can see it can be written as, now VC t at t equal to t naught by 2, VCT t equal to t naught by 2 पे कितना होगा बेटा? Vm t naught by 2 RC। मैंने क्या किया, t की जगह t naught by 2 डाल दिया। Let's call it as equation number 2। Now let's equate equation number 2 and equation number 1। VC at t equal to t naught by 2, VC at t equal to t naught by 2 किसके बराबर है? डेल्टा V नॉट के। इसका मतलब टिल्ट डेल्टा V नॉट is coming as Vm into t naught by 2 RC। I want to calculate relative tilt। Relative tilt with respect to what? With respect to the input voltage, that is Vm। तो relative tilt कितना हो जाएगा? डेल्टा V नॉट बाई Vm। Vm कट गया, क्या आ गया? T नॉट बाई 2 RC। I want to calculate percentage tilt। Relative tilt into 100, T naught by 2 RC into 100। ध्यान से देखना, एक स्टेप में निपटा रहा हूं। 2 पाई बाई टी नॉट, नीचे ओमेगा नॉट आया, 2 पाई बाई टी नॉट डिनोमिनेटर में ले आओ, तो ये क्या आया? ओमेगा नॉट। 1 बाई आरसी ऊपर ओमेगा एल आया, ओमेगा एल बाई ओमेगा नॉट आया, ओमेगा एल बाई ओमेगा नॉट आया। सो दिस कैन बी रिटन एज पाई एफ एल बाई एफ नॉट। अब अगर एक चीज देखो, टाइम कांस्टेंट बहुत बड़ा है कि छोटा है? इनपुट वेवफॉर्म, percentage tilt, and hence
output waveform will be almost similar to the input waveform, that is no wave shaping will occur. पर अगर टाइम कांस्टेंट छोटा हुआ तो क्या? बिकॉज वी टुक वेरी लार्ज, लेट्स टॉक अबाउट वेरी स्मॉल. अगर टाइम कांस्टेंट वेरी स्मॉल लेंगे तब क्या होगा, मैं ये देखना चाहूँ. तो ये देखने के लिए मुझे आपके 5 मिनट चाहिए. And the same circuit. Let's see what's going to happen. First, V 0 था, V आउटपुट किस T, कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम कांस्टेंट क्या है? RC, और RC बहुत छोटा है, बहुत. मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये ऐसा है और यहां तक सपोज T0/2 है तो कैपेसिटर मेरा ऐसे चार्ज हो जाएगा बिल्कुल. T0 T0/2 कैपेसिटर charges rapidly, है ना? ये वोल्टेज कम है, ये वोल्टेज ज्यादा है, ठीक है. T0/2, T इक्वल टू T0/2 पे क्या होगा? V इनपुट 0. ओके, सो V, सॉरी, V आउटपुट छोटे से लिखा है पीछे, क्या बड़े से ना, ये छोटा मैंने यहां गलती से कर दिया. एंड हो रहा था तो कैपेसिटर ने वोल्टेज Vm जो है वो अचीव कर ली थी बहुत जल्दी. तो जैसे ही हम सोर्स को हटाएंगे कैपेसिटर सडन चेंज इन वोल्टेज अलाउ नहीं करेगा. मतलब इट विल होल्ड इट्स वैल्यू, इट विल होल्ड इट्स वैल्यू. सो V आउटपुट इज माइनस Vc. इसका मतलब V आउटपुट कितना हो जाएगा? माइनस Vm. तो सेम वही चल रहा है बेटा, 2 से T0 तक ये वाला सर्किट. कैपेसिटर R एंड क्या हो रहा है? सेम एनालिसिस है, बट टाइम कांस्टेंट जो है वो बस कम हो गया. आई थिंक क्लियर होना चाहिए, आई थिंक क्लियर होना चाहिए, है ना? ठीक है, ध्यान से सुनना. फिर कैपेसिटर क्या था? Vc Vm था, तो ये माइनस Vm हो गया Vc. तो ये भी सडनली डिस्चार्ज होगा 0 की तरफ. फिर ये 0 रहेगा वोल्टेज के बराबर. एंड it consists of positives constantly, approximately behaving like a differentiator. Differentiator also does the same thing, isn't it? Okay, so let's write this. तो वेव शेपिंग हो गई ना, अब वेव शेपिंग हो गई, शेप हो गई वेव की, ठीक है. नाउ वी हैव अचीव्ड द वेव शेपिंग. सो लेट मी राइट दिस पॉइंट एंड फिनिश द क्लास फॉर यू. Square wave, therefore that is it performs wave shaping. Achieve. चल सही हो जाए. थैंक यू. मैं आपको टेलीग्राम में पूछूंगा जो है सब दिस